Question that we have is saying explain why the ionic radii of halides are larger than the atomic radii of the corresponding halogens. We discuss about the atomic radii of non-metals, right? When metallic atom, it forms an ion by losing an electron. So that's why its number of shells decreases, right? So sodium atom has 3 shells, sodium ion has only 2 shells. So that's why atomic ionic radii of sodium ion is smaller as compared to the atomic radius of sodium ion. But for non-metallic atoms, they gain electron, right? So when they gain electron, due to the extra electron, the repulsion between their electrons increases. So their shell moves bit farther away from the nucleus. So the anionic radius are greater as compared to their atomic radius, right? So for halogens, halogen is again a non-metal atom, right? Fluorine, if you see fluorine has 9 electrons, but a fluoride ion has total of 10 electrons. When it gains 1 electron in its outer shell, there is a slight increase in the ionic radius of fluoride ion as compared to the ionic radius of fluorine atom. So he is asking why the ionic radii of halide. Radii is the plural for radius. Okay? Why ionic radii of halides are larger than atomic radii of the corresponding halogens? Because when extra electron is added, repulsion between electrons is increased as a halogen atom gains electron. Okay? It's simple. Not yet. Today we will start studying about ionization energies. Question 2 says which diagram represents the change in ionic radius of the elements across the third period. Okay, we have already discussed this trend. The trend is option C, because if we see for all the metals that form cations, their trend of ionic radius is a decreasing trend, because across the period atomic radius decrease as well as the ionic radius decreases. But from group 15 onwards, that is for nitrogen atom, when it forms a nitride ion, sorry, they are talking about period 3. So for group 15 we have phosphorus atom. When it forms a phosphide ion, it has a larger radius as compared to its phosphorus atom. But as we move across the period 3, if we compare the ionic radii of phosphide ion, and then after phosphide we have sulfide ion, after sulfide we have chloride ion. So their ionic radii must decrease, because from phosphide to chloride there is an increase in the nuclear pull due to increase in number of protons. Although there is extra electron is added, but the more number of electrons are added in the phosphide ion, and the only 1 electron is added in the chloride ion. Although there is an increase in repulsion, but there is increase in nuclear pull as well. But if you see the chloride ion, it has only 1 extra electron as compared to phosphide ion. What about option 3? You have to arrange these atoms and ions in ascending order of increasing atomic radii. So which one? All of these elements are from, not all, but 2 of these are from period 4 and 1 is from period 3. Argon is from period 3 and calcium and potassium are from period 4. So if you see a calcium atom has how many shells? It has 4 shells, but a calcium ion has only 3 shells and its atomic number is still 20. If you see a potassium atom has again 4 shells, because its atomic number is 19. But when it forms a potassium ion, it is left with how many shells? It is left with 3 shells. So what do you think? The size of potassium ion would be bigger or the calcium ion would be bigger? Potassium comes before calcium in its period. So across the period, size of ion also decreases. So calcium ion size should be smaller than the size of the potassium ion, right? Calcium ion must be smaller than potassium ion, because both have 3 shells and the atomic number of calcium is 20. It means it has a greater nuclear pull. So its electron would be more closer to the nucleus.
So size of potassium ion is smaller than size of calcium ion is smaller than potassium ion. What about argon? Argon is an atom. Argon has an atomic number of 18. Its atomic number is lesser than that of the potassium and calcium. But if you see the number of shells, argon has how many number of shells? 3 shells. So which one should be the smallest? Calcium, because its atomic number is greatest. Potassium is 19 and the smallest atomic number of these three is with argon. Argon is 18. All of these three particles have 3 shells, right? Number of shells तो same है ना. Atomic number अब जिसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसका न्यूक्लियर पुल सबसे बड़ा होगा, उसका साइज सबसे छोटा होगा. So calcium ion is the smallest size, then we have potassium ion, and then we have argon atom. So the answer should be C. Yes, pull on electrons. Nuclear pull on electrons makes the calcium radius smaller than the potassium ion. अहमद देखो बेटा, calcium ion has how many number of shells? You want me to explain question 2 or question 3? अहमद question 2 पूछ, question 3 पूछ रहे हो, and अभी you are asking question 2. चलो दोनों कर लेते हैं. पहले question 3 देख लेते हैं. Question 3 में we have argon atom, a potassium ion and a calcium ion. अगर अच्छा ये कह रहा है कि वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक हमने देखा था which have same number of electrons. It means they will always have same number of shells as well. अगर मैं आर्गन को देखता हूं तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18. आर्गन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 18. एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,8. मतलब मैं शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, सब शेल्स में नहीं जा रहा हूं, अभी जरूरत नहीं है ना. आर्गन एटम के पास 3 शेल्स है. कैल्शियम आयन के पास भी तो 3 शेल्स हैं, और पोटेशियम आयन के पास भी 3 शेल्स हैं, बिकॉज पोटेशियम आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट इज लेफ्ट विद 3 शेल. सिमिलरली कैल्शियम after losing 2 electrons from its valence shell it is also left with 3 shells. So number of shells in all of these 3 particles are same. However, their sizes are not same. Reason, because if you see the atomic number or the number of protons present in the nucleus which will exert the nuclear pull on the electron. देखो न्यूक्लियर पुल अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो वो अपने शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को करीब करीब रखेगा ना न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियर पुल, अब नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है सब में, तो उसकी वजह से तो साइज इफेक्ट नहीं होगा. तो साइज इफेक्ट होगा न्यूक्लियर पुल की वजह से. न्यूक्लियर पुल जिसका ग्रेटेस्ट होगा उसका जो शेल्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब करीब होंगे, तो उसका साइज सबसे छोटा होगा. तो स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? जिसका न्यूक्लियर पुल सबसे ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम है सब में. तो स्मॉलेस्ट साइज होगा कैल्शियम आयन का. पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन्स हैं, उससे बड़ा पोटेशियम आयन का होगा, सबसे बड़ा आर्गन एटम का होगा. ठीक है अहमद? ओके. नाउ फॉर क्वेश्चन 2. अभी हाँ क्वेश्चन 2 बेटा हमने लास्ट क्लास में इफ यू रिकॉल हमने ये 10 पढ़ा था. इफ यू सी ए पीरियड 3 एलिमेंट्स, their atomic trend of atomic radius should be something like this that we have drawn with a red line. Across the period atomic radii decreases. Why? Because number of shells are same. As number of shells are same, shielding effect stays same, but atomic number increases across the period, so nuclear pull increases. अब वही वाली बात है, जब शेल सेम है और न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है तो क्लोरीन एटम का साइज जो है वो सबसे छोटा होगा एज कंपेयर टू सोडियम एटम. ठीक है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होगा. लेकिन अगर हम इनके आयंस की बात करेंगे ना, तो सोडियम आयन का साइज शुड बी स्मॉलर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम एटम. ठीक है, मैग्नीशियम आयन का साइज should be smaller than its corresponding magnesium atom. But if you compare the size of sodium ion and magnesium ion, both have 2 shells left. But the size of magnesium ion should be smaller than sodium ion. Reason, because again it has more number of protons. Now its nuclear pull is greater. If you keep moving on, aluminium again will have a smaller size than its aluminium atom, and its aluminium ion size should be smaller than the size of magnesium ion. सिलिकॉन अगर 4 पॉजिटिव आयन बनाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन तो उसका एक शेल कम हो जाएगा, तो उसका साइज उसके सिलिकॉन एटम से कम होगा. बट एज वी मूव बियॉन्ड ग्रुप 14, इफ वी सी ग्रुप 15 में atoms they do not lose electron to form an ion, they gain electron. Now
when a phosphorus atom gains 3 electron, there is an increase in repulsion between the shells that are present in electrons that are present in the shells. जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा तो बेटा रिपल्जन बढ़ेगी ना। तो फॉस्फोरस एटम के पास तो 3 शेल्स थे, फॉस्फाइड आयन के पास भी 3 शेल्स हैं, बट फॉस्फोरस एटम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 थे, फॉस्फाइड आयन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है। तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से देयर विल बी अ स्लाइट इंक्रीज इन द रिपल्जन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड देन द शेल्स विल मूव स्लाइटली फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो फॉस्फाइड आयन का साइज है वो बड़ा होगा ना फॉस्फोरस एटम से, इसलिए वो ट्रेंड जो है ना सोडियम से सिलिकॉन तक नीचे जा रहा था। अगर सिलिकॉन को आप पॉजिटिव आयन कंसीडर कर रहे हो, अगर नेगेटिव कंसीडर कर रहे हो तो वो भी फिर एनायनिक ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे फॉस्फाइड आयन है, फॉस्फाइड के बाद सल्फाइड है। अच्छा, फॉस्फाइड और सल्फाइड को कंपेयर करोगे तो अगेन उनके साइजेस में डिक्रीज होने का रीजन ये है कि फॉस्फाइड के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 है और सल्फाइड के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है। इफ यू सी देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास 18 है, मतलब रिपल्जन तो दोनों में सेम है, लेकिन न्यूक्लियर पुल सल्फाइड का ज्यादा है, इसलिए वो अपने शेल्स के इलेक्ट्रॉन को करीब करीब रखेगा। अभी आप बच्चे बात समझ आई? आगे बढ़े। ओके, अच्छा भाई, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new concept and which is the last concept of this topic, this chapter as well. atomic structure पे हमारा एंड हो जाएगा। ये इस तरह की चीज बेटा आपने कभी पहले नहीं पढ़ी है। ठीक है, ग्रेड 11 में आपका इस तरह की कोई चीज आप नहीं पढ़ सके हो, पहली बार आप ये पढ़ने जा रहे हो। दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है? एज द वर्ड सजेस्ट, आयन, आयन मीन्स यू हैव टू फॉर्म एन आयन, and how you can form an ion? by either by removing an electron, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, और बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो होती है व्हेन यू हैव टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, अगर कोई भी हमारे पास एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, so the nucleus is always attracting the electron, which is known as nuclear attraction or nuclear pull. If you want to remove that electron from the shell, you have to overcome the nuclear attraction. It means you have to overcome the nuclear attraction by supplying the heat energy to the electron. जब आप हीट करोगे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, it will overcome the force of attraction with the nucleus and it will then be removed from its shell. So the energy that is required to remove an electron from the shell is known as ionization energy. हुजैफा वहीं पे फंसे हुए अभी तक। फॉस्फाइड आयन फॉस्फोरस एटम से बेटा बड़ा इसलिए है क्योंकि आपका जो फॉस्फोरस एटम है उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 3 शेल्स है। ठीक है, 15 इसका एटॉमिक नंबर है, राइट, 2,8,5। फॉस्फाइड आयन के पास भी टोटल नंबर ऑफ शेल्स 3 ही हैं, क्योंकि वो अपने वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन ये जो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, इनकी वजह से जो बाकी के पहले के इलेक्ट्रॉन्स थे उनके बीच में रिपल्जन बढ़ेगा, और जब रिपल्जन बढ़ेगा तो शेल्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो जब शेल्स दूर दूर होंगे एक दूसरे से तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा ना। समझ आई बात हुजैफा? आगे बढ़े आप। शेल्स नहीं बढ़े, शेल्स देखो, अरे 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 अरे, शेल्स नहीं बढ़े। शेल्स पहले भी 3 थे, फॉस्फोरस एटम के पास भी और फॉस्फाइड आयन के पास भी 3 शेल्स है। फॉस्फोरस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। फॉस्फाइड आयन के पास भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 है, और वैलेंस शेल में पहले उसके अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट व्हेन इट हैज गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी वैलेंस शेल में जाके ऐड होगा ना। अब देखो, क्योंकि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए
तो हमने याद है शील्डिंग क्या पढ़ा था? शील्डिंग इज द रिपल्जन ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है ये इंक्रीज हो जाएगी ना। पहले देखो आउटर शेल के 5 इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्जन थी, अब आउटर शेल में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उनपे रिपल्जन भी ज्यादा हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है ना। तो वो जो वैलेंस शेल है वो बढ़ेगा नहीं, रहेंगे तो उतने ही, बट वो जो वैलेंस शेल है वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्जन ज्यादा मिल रही है। इसलिए जो फॉस्फाइड आयन है उसका साइज वुड बी स्लाइटली बिगर एज कंपेयर टू इज फास्फोरस एटम। गॉट इट? वापस आ जाए आयनाइजेशन एनर्जीज पे। तो आयनाइजेशन एनर्जीज बेसिकली क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। एंड व्हाई डू यू नीड एनर्जी? बिकॉज electrons are under the nuclear pull or nuclear attraction of the nucleus of that particular atom. So you have to supply energy उसको छीनने के लिए nuclear pull से, right? तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जीज। अच्छा देखो, अब बेटा केमिस्ट्री में जब भी आप एनर्जीज की बात करते हो या फॉर एग्जांपल क्वांटिटी की बात करते हो ना किसी चीज की, बेसिकली यू आर सप्लाइंग एनर्जी। हाउ मच एनर्जी यू एक्चुअली नीड, लेट्स से टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम एटम, do we deal with one atom? If you recall your very interesting topic from grade 11, that was moles and stoichiometry. तो moles में we studied that we never deal with one atom. For example, if I say sodium atom has a relative atomic mass of, sodium element has a relative atomic mass of 23. Now does 23 के साथ जब आप ग्राम लगाते हो तो इज दिस द मास ऑफ वन सोडियम एटम? क्या हम 23 ग्राम एक सोडियम एटम का मास लिखते हैं? नहीं ना, ये होता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का मास। एंड 1 मोल ऑफ एटम हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स? क्या 1 मोल ऑफ एटम्स में एक एटम होता है किसी भी चीज का? कितने एटम्स होते हैं? इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। एंड एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स मींस वी हैव टोटल ऑफ 6.022 exponent 23 sodium atoms. Why we have to introduce moles in everything? Because it is impossible to have measurement for one atom, because one atom is so small. Even if I asked you to just pick one atom, is it possible for you? Even if you just pick the tiniest amount of sodium element, you will have millions and millions of sodium atoms in that tiny amount of sodium element. It means it is certainly impossible to deal with one atom of anything. So we deal with a large number of atoms, and that large number of atoms is quantified as moles. So whenever we are trying to give measurement related to anything, whether it can be a mass, it can be a volume of any element, it can be number of particles, it can be energy required to perform something. Even if you write chemical equation, do you actually use one atom or one molecule? No, you always talk in terms of moles. For example, if I say I have a sodium atom reacting with chlorine molecule to form sodium chloride, when you balance this equation, you will write 2 mole of sodium chloride and 2 mole of sodium. So how would you read this equation? Do you read 2 atoms of sodium? No, you read 2 moles of sodium atom reacts with 1 mole of chlorine molecules to form 2 mole of sodium chloride. तो केमिस्ट्री में हम हमेशा जब भी किसी भी चीज को क्वांटिफाई करेंगे तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस मोल्स, राइट? नाउ आई एम सेइंग दैट इफ वी नीड टू रिमूव द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सोडियम एटम, आई हैव टू फाइट विद द न्यूक्लियर पुल ऑफ सोडियम। सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है एंड दे आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन देयर इलेक्ट्रॉन्स. If I need to remove this electron from the valence shell of sodium, I have to fight with the nuclear pull. So how do I fight with the nuclear pull? I will supply heat energy to this electron. This electron, when it gains heat energy, it overcomes the force of attraction and it leaves its valence shell. जबरदस्ती निकालना है ना हीट करके, तो वो हीट करने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, that energy is known as ionization energy. लेकिन क्या हम 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे या 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के लिए बात करेंगे? नेवर. वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ सोडियम एटम. एंड व्हेन वी हैव टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 सोडियम एटम, एंड इफ वी आर डीलिंग विद 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, हम उसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे.
अब मोल्स को जो है आप एटम्स के लिए भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यूज कर सकते हो, इनफैक्ट किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, it means how many sodium atoms do we have? Equals to Avogadro number of sodium atom, which is 6.022 exponent 23 sodium atoms, right? But if I say I have 1 mole of electrons, so it means I have Avogadro number of electrons, 6.022 exponent 23 electrons. So mole is not specific to atoms, molecules or ions, but it can be used for anything. इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज करेंगे भाई, एनीथिंग से क्या मतलब है? इफ आई से आई हैव 1 मोल ऑफ कैलकुलेटर्स, हाउ मेनी कैलकुलेटर्स डू आई हैव? 6.022 एक्सपोनेंट 23 कैलकुलेटर्स इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर। लेकिन ऑब्वियसली मैं इतने कैलकुलेटर का क्या करूंगा, ये नंबर तो बहुत बड़ा है। तो हम लोग ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज करते हैं मोल्स को, जहां पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन्वॉल्व होते हैं, और अब ए लेवल में इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो, राइट? तो हम जो डेफिनेशन लिखेंगे ना आयनाइजेशन एनर्जी की, देखो पता है मैं क्यों फोकस कर रहा हूं इस डेफिनेशन पे। पहली बात तो इस तरह की चीज आप पहली बार पढ़, और दूसरी बात कि आपको इन डेफिनेशंस पे इसलिए फोकस करना है बिकॉज वंस यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेशन देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशंस में रट्टे वाला काम नहीं है, आपने सिर्फ याद कर ली डेफिनेशन और आपका आंसर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज यूज्ड इन दिस डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर और डिस्कस करते हैं इसको। देखो, ionization energy is the energy required, this is the energy required to remove 1 mole of electrons. When I am writing 1 mole of electrons, make sure you have to write S with the electrons because it should be plural. 1 mole of electron is not just 1 electron, it is equals to Avogadro number of electrons. ठीक है, छोटी छोटी बातें, बात ग्रामर की नहीं है यहाँ पे, बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट की है। इफ यू आर राइटिंग 1 mole of electron, इट मींस यू डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट कि 1 mole of electron एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एस लिखना जरूरी है यहाँ। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms. See, 1 mole of gaseous atoms, not just atom, plural है, to form 1 mole of gaseous positive ions. Again, see, I have written 1 mole 3 times. 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms. इन्हीं के मार्क्स है, यही 3 कीवर्ड्स हैं, 3 मार्क्स तक की आ चुकी है ये डेफिनेशन, और यूजुअली आती है, यूजुअली इट कम्स फॉर 2 मार्क्स, बट कभी कभार ये 3 मार्क्स के लिए भी आई है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 3 कीवर्ड्स। इफ यू जस्ट फॉरगेट टू राइट 1 mole, मार्क गया, सीधा सीधा मार्क चला जाएगा। इक्वेशन बना के समझते हैं क्या मतलब है इस बात का। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 1 mole ऑफ सोडियम, और सोडियम अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में यानी सॉलिड स्टेट में नहीं लेना है, गैसियस एटम लेना है। गैसियस एटम क्या होगा? यू जस्ट हैव टू राइट द सिंबल G विद इट। ठीक है, यू हैव 1 mole ऑफ गैसियस सोडियम एटम, एटम लोगे तो उस पर तो चार्ज नहीं होगा ना अभी, but once you have removed the electron, you are removing the electron, so the electron must come on the right hand side of the equation. Once you have removed the electrons from the sodium atoms, you will get sodium plus 1 gaseous sign, right? And 1 mole of electron आप right hand side पे लिखोगे। देखो, अगर मैं एक सोडियम एटम के लिए बात करूंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन तो बन जाएगी, लेकिन जब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा ना आयनाइजेशन एनर्जी की, तो वो हम लिखते हैं किलो जूल्स पर मोल में, कि 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। और 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यू विल ऑलवेज रिमूव इट फ्रॉम 1 mole ऑफ एटम्स that must be in the gaseous form to form 1 mole of ions that also must be in the gaseous form. Similarly, you can remove electrons from any of the gaseous atom. For example, if we have a magnesium atom,
gaseous atom, and if you are just removing 1 mole of electron, then you will get 1 mole of Mg positive 1 gaseous ion. Although magnesium, when it reacts, it loses 2 electrons, but right now we are just removing 1 electron, 1 mole of electrons. So it will form Mg plus 1 gaseous ion. Similarly, let's say if we have a chlorine gaseous atom, chlorine when it reacts, it gains electron, but अभी हम जबरदस्ती chlorine का electron निकाल रहे हैं. So when we remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous chlorine atom, we will get 1 mole of gaseous chlorine plus 1 ion. This is the energy required to do this process is the ionization energy. अब इनकी जो ionization energy है ना, उनकी values आपको याद नहीं करनी होती हैं. They are given in the question. For now, I can show you the values of these ionization energies from the data booklet जो हमारे पास syllabus में given होता है. If you see these pages, initial pages, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ionization energies. अब ये first, second, third, fourth क्या है इसकी अभी हम बात करते हैं. But the unit for ionization energy is kilojoule per mole. If you see a sodium atom, its first ionization energy. First ionization energy is basically when you have to remove first mole of electron. जब पहला electron निकालोगे तो वो first ionization energy हो जाएगी. This is 494. For magnesium, this is 736. For chlorine, the first ionization energy is 1260. This is 494, 736, 1260. The unit for ionization energies are kilojoule per mole. मतलब in order to remove 1 mole of electrons, should be kilojoule per mole. So these are known as ionization energies, right? अच्छा जी. And this is the energy that you need to supply. और जब भी आप हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हो किसी चीज में तो उनका जो साइन होता है वो हम पॉजिटिव लिखते हैं. ठीक है, ये रिमूव करवाने के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवाइए ना. एंडो एक्सो याद है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हो तो वो पॉजिटिव होती है. जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव होता है. यहाँ तो हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं ना. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज. कोई भी एटम हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का गैशियस एटम ले सकते हो. जैसे अगर आपने एल्यूमिनियम का ले लिया, gaseous aluminium atom, if you are removing first mole of electron from the gaseous aluminium atom, you will get aluminium plus 1 gaseous ion. This is the first ionization energy of aluminium. For example, if you have oxygen gaseous atom, if you remove 1 mole of electron from the gaseous oxygen atom, you will get oxygen plus 1 ion. Right? So this is the equation for the ionization energy of oxygen. Now, further, we have divided ionization energies into different categories. First one is first ionization energies. अब क्या फर्क है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में और आयनाइजेशन एनर्जी में भाई? when you are removing first mole of electrons from any gaseous atom, that would be your first ionization energy. तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? It is the energy required to remove one mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous. अभी तक देखो सब कुछ सेम है डेफिनेशन में, आयनाइजेशन एनर्जी भी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी. लेकिन जब आप फर्स्ट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो आपके पास आइन बनेगा वो गैशियस प्लस 1 आइन बनेगा ना हमेशा. तो दिस इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज. और हमने ऊपर जितनी भी इक्वेशंस लिखी हैं, these all equations are for first ionization energies. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज की भी एग्जांपल में हम ये सारी की सारी इक्वेशंस दोबारा स्टेट कर सकते हैं.
सही है भाई? कोई सवाल यहाँ तक? अबिहा, अबरार, आहद, अहमद, अलीज़े, ईमान, अलिशबा, रिदा, वजीहा, यमुना, जारा, जुनैरा, उमैजा। अच्छा, दोस्त हु ज्वाइन लेट, क्या आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए हैं पीछे से? ये अपकमिंग क्लास से ना हम बहुत एक्सटेंसिवली इस चैप्टर के पास पेपर्स करने जाएंगे। अगर नहीं देखें तो यू स्टिल हैव वन मोर वीकेंड, मेक श्योर यू watch all the lectures, because once we are done with the past papers you will be having your test. अभी यार मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आई विल लुक टू इट। नाउ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज। भाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव फर्दर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक निकालने के बाद एक और निकाल लो, ठीक है? तो वो क्या बनेगी? ये सीमान ऑनलाइन ही होगा टेस्ट, ये सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज हमारे पास क्या होती हैं? इट इज द एनर्जी, बल्कि पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं। देखो, आपने सोडियम एटम में, गैशियस एटम में से व्हेन यू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो थी उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी को ना मैं शॉर्ट फॉर्म में आई लिख रहा हूं। Now, if you have to remove further one mole of electron from this sodium gaseous plus one ion में से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो you will get sodium 2 positive gaseous ion. So this would be called as second ionization energy of sodium. So what would be the definition of second ionization energy? It is the energy required to remove one mole of electrons, सेम यहां तक तो सेम है, फ्रॉम नॉट वन मोल ऑफ गैशियस एटम बट फ्रॉम वन मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव वन आइंस टू फॉर्म गैशियस पॉजिटिव टू आइंस। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, if you want to make the equation for the second ionization energy of chlorine, so we must already have chlorine plus one gaseous ion. If we remove further one mole of electrons from gaseous chlorine positive one ion, we will get gaseous chlorine positive two ion. इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? गलती बताऊं? गलती क्या करेंगे? वो कहेंगे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने, तो यहाँ पे टू लिख देते हैं। टू क्यों लिख रहे हो? आपने इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकाला है ना, प्लस वन से प्लस टू बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। हम आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि यू हैव गैशियस क्लोरीन एटम एंड यू आर डायरेक्टली फॉर्मिंग गैशियस क्लोरीन टू पॉजिटिव आयन, तब आप निकालते टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आप प्लस वन से प्लस टू जा रहे हो, तो इट मींस यू आर रिमूविंग जस्ट वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज योर कीवर्ड, one mole of electrons from one mole of gaseous positive one ions to form, क्या मिस्टेक किया यहाँ पे मैंने? टू फॉर्म गैशियस पॉजिटिव टू आयन, लेकिन मैं क्या लिखना भूल गया? टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैशियस पॉजिटिव टू आयन। राइट हुजैफा, थैंक यू। ठीक है, if I asked you to make the equation for the second ionization energy of, let's say, iron atom, if you must have आयरन प्लस वन गैशियस एटम, गैशियस आइन सॉरी, एटम होगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड बना रहे हो तो टू पॉजिटिव चार्ज आएगा बाय रिमूविंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, आगे बढ़े। इसी तरह हमारे पास थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी हो सकता है।
अब जरा जल्दी से कोई मुझे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज को डिफाइन करेगा? Is the energy required to remove 1 mole of electrons? अभी भी निकालना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। कुछ लोग थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, एक ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बट फ्रॉम 1 मोल ऑफ, वेरी गुड हसन, 1 मोल ऑफ गैशियस positive 2 ions to form gaseous positive 3 ions. This is third ionization energies. Example पे we can take example of sodium. For example, if you have Na2 positive gaseous ion, if you remove further 1 mole of electron from Na2 positive ion, you will get Na3 positive gaseous ion. देखो this state symbol, if you miss writing this state symbol in the equation, again you will lose the mark. Similarly, if we take an example of the third ionization energy of chlorine, it means you have already, अच्छा क्लोरीन के साथ नेगेटिव चार्ज नहीं लगा देना भाई, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अब क्लोरीन बेशक जब रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। Right now you are removing the electron, you are on the quest of removing the electron. So if you have a chlorine 2 positive gaseous ion, if you remove further 1 mole of electron from Cl2 positive gaseous ion, you will get Cl3 positive gaseous ion, right? So this is the equation for the third ionization energies of sodium and chlorine. इसी तरह हमारे पास फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी भी होगा, फिफ्थ भी होगा, सिक्स्थ भी होगा। हम किसी भी एटम में कब तक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? जब तक सारे के सारे ना निकल जाए, ठीक है। To form 1 mole of gaseous positive 3 ions, again to form 1 mole of gaseous positive 3 ions, 3 पॉजिटिव लिख दें, पॉजिटिव 3 लिख दें, चल जाएगा, दोनों चल जाएगा उज़ैफा। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? अब वर्डिंग में भी लिख सकते हो पॉजिटिव 3 पॉजिटिव। समझ आती है यहां तक बात? अब नाउ फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी. If you see the values of first ionization energy of sodium and magnesium, in order to remove the first mole of electron of magnesium, you need to supply 736 kilojoules of energy. Similarly, अगर सोडियम का फर्स्ट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी कम चाहिए, क्लोरीन का निकालना है तो और ज्यादा चाहिए। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है जरा सोच सक के बता सकते हो कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ज्यादा। क्यों मुश्किल है? उसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा। मैग्नीशियम का निकालना आसान है, न्यूक्लियर पुल कम है। मैग्नीशियम का पास प्रोटॉन 12 है, क्लोरीन के पास 17 है। भाई इसके 17 प्रोटॉन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ था, मैग्नीशियम के 12 प्रोटॉन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, सोडियम के 11 प्रोटॉन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है। तो इट मींस the values for ionization energy must be different. So there must be some factors that will affect the values of ionization energies as well. और वो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं? वही वाले फैक्टर्स हैं जो कि हमने एटॉमिक साइज के लिए पढ़े थे। न्यूक्लियर चार्ज, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा, न्यूक्लियस पावरफुल होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ेगा। और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है? नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है from the valence electron or the electron that need to be removed should be further away from the nucleus, and as electrons are farther away from the nucleus, it means they must experience a lesser nuclear pull. It is easier to remove those electrons which are experiencing the lesser nuclear pull due to the greater distance from the nucleus. Second, मतलब if you are increasing the nuclear charge, it becomes difficult to remove the electron, hence ionization energy must increase. If you are increasing the nuclear charge, and how can you increase the nuclear charge? You just have to increase
number of protons. If any atom has greater number of protons, it means its nuclear pull or nuclear charge is greater. And in order to remove the electrons from the greater nuclear pull or nuclear charge, you need to supply more amount of heat energy. It means ionization energy would be greater. For atomic radius, if you increase the atomic radius, it means you are increasing the distance of the electrons from the nucleus. We will only have to compare the values of first ionization energies of the atoms. तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन हम कहां से निकालेंगे? जो सबसे लास्ट शेल में होगा, वैलेंस शेल में होगा, अंदर से नहीं निकालेंगे। जो सबसे पहले होगा लास्ट शेल में, उसको सबसे पहले निकालेंगे। देन वी विल मूव टू द इनर शेल्स। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस है ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस वुड बी लार्जर, ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो उस पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम लग रही होगी। और अगेन जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम लग रही होगी तो उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो वी कैन से इंक्रीजिंग इन एटॉमिक रेडियस द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल विल एक्सपीरियंस लेसर न्यूक्लियर पुल। तो उसको हम न्यूक्लियर पुल उस पे कम होगा, और जब न्यूक्लियर पुल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड वुड बी लेसर। शील्डिंग इफेक्ट क्या आता है? रिपल्जन ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास लेट्स से वी हैव these देखो, भी हम कंपेयर कर रहे हैं सोडियम को एंड पोटेशियम। तो आप मुझे बताएं, पोटेशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके फोर्थ शेल में, सोडियम का वैलेंस शेल उसके थर्ड शेल में, कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है, सोडियम के या पोटेशियम के? मैं पूछ रहा हूं। पोटेशियम के, रीजन बता सकते हो? Is farther away from the nucleus, it experiences lesser nuclear pull on the valence electron. Very good, but you have to use all these three factors. कौन से factors हैं भाई? The first factor that can affect the ionization energy is the distance of the electrons from the nucleus, और उसको हम एटॉमिक रेडियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, if atomic radius increases, it becomes easier to remove electron, so ionization energy must decrease. ये जो मैं एरो अपवर्ड और एरो डाउनवर्ड बनाता हूं ना, ये इंक्रीज और डिक्रीज के लिए बना रहा हूं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स वाले एरो नहीं है। तो अब ये मेरा शॉर्टकट है, अब आपने पूरा इंक्रीज और डिक्रीज लिखना है भाई यहाँ पे। मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ाओगे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। मैथमेटिकली अगर हम कहें कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज होगा तो इस फैक्टर को हम शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी पढ़ सकते हैं ना।
और शील्डिंग इफेक्ट को हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी पढ़ा है, राइट। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं किसी भी एटम में, तो इनर शेल, देखो पोटेशियम का जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है उस पे रिपल्जन लग रही है 3 इनर शेल्स की वजह से। तो इस पे जो फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रही है वो स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ रिपल्जन ऑन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। इस पे फोर्स ऑफ रिपल्जन कम लगेगी क्योंकि इनर शेल्स कम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स भी कम है, राइट। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से निकालना इतना आसान नहीं होगा जितना पोटेशियम का होगा, क्योंकि पोटेशियम के पीछे के इलेक्ट्रॉन उसको वैसे ही धक्का दे रहे हैं कि भाई तुम जाओ, तो हमें निकालना आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होता है, शील्डिंग बढ़ती है, और जब शील्डिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना जब आसान हो जाएगा तो इट मींस के आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी स्मॉलर, ठीक है। और थर्ड फैक्टर जो है वो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन उल्टा काम करता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कह सकते हैं इसको या न्यूक्लियर पुल भी कहते हैं। वो क्या करता है कि जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगी भाई, जब आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम में तो न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इट मींस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। So we have total of 3 factors that can affect the values of first ionization energies. Atomic radius, shielding. Shielding and atomic radius is obviously interrelated because if number of shells are increasing, the atomic radius will definitely increase, so does the shielding. Number of shells बढ़ेगा तो atomic radius तो बढ़ेगा बढ़ेगा, shielding भी बढ़ेगा साथ में। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, सही है। So we can say, in order to summarize all these things, we can say ionization energy is directly proportional to nuclear attraction or nuclear pull, which in turn is directly proportional to number of protons. And on this same side, ionization energy is inversely proportional to number of shells. नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाओगे आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाओगे शील्डिंग बढ़ेगा और डिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप चाहो तो यूं भी लिख सकते हो उसको, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, या एटॉमिक रेडियस लिख दो, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। लेकिन ये तीनों इंटरकनेक्टेड है ना, एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ेगा या शील्डिंग क्यों बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, तो इंटरकनेक्टेड है दोनों फैक्टर्स, सही है। अब इन फैक्टर्स को यूज करते हुए मुझे बताओ, आप सब कह रहे हैं कि पोटेशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी लोअर एज कंपेयर टू सोडियम, बाय बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द outer shell electron of potassium is greater. Potassium electron is farther away from the nucleus, hence it experiences lesser nuclear pull and it experiences more shielding. So it is easier to remove the electron of potassium as compared to the electron of sodium, because sodium has fewer shells, lesser shielding effect. देखो सोडियम के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इट हैज फ्यूअर, बल्कि इसको जो है ना आफ्टर फैक्टर्स लिखते हैं। Sodium has fewer shells, smaller radius, lesser shielding, and potassium has more shells, larger radius, and greater
शील्डिंग। ठीक है, लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, शील्डिंग का फैक्टर हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने में, एटॉमिक रेडियस का फैक्टर हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने में, न्यूक्लियर अट्रैक्शन का फैक्टर रेजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को निकलने में। ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, पोटेशियम में या सोडियम में? न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो पोटेशियम के पास तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, सोडियम के पास कम है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स है बेटा, पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन है। तो इस फैक्टर को तो आप लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। मैं अगर आपको एक्चुअल वैल्यूज बताऊं ना, तो पोटेशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाकई ही कम होती है सोडियम से। अगर मैं आपको वैल्यूज दिखा दूं तो आपको और यकीन आ जाएगा कि पोटेशियम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 418 एंड सोडियम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 494। थोड़ा सा फर्क है ना, 418 है, ये 494 है। ऑल्दो द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन पोटेशियम एटम इज ग्रेटर ड्यू टू 19 प्रोटॉन, सोडियम में स्मॉलर है ड्यू टू 11 प्रोटॉन्स। फिर वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम स्मॉलर क्यों है? क्योंकि जो दूसरे दो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, द फैक्टर्स ऑफ शील्डिंग एंड द फैक्टर ऑफ एटॉमिक डिस्टेंस, और सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर more significant or they have a greater impact. Yes, Josefa, very good. So the word that we use is shielding effect is more significant than nuclear attraction. Although nuclear attraction is increasing, but we can say as the resultant amount, the effective nuclear pull is decreasing. The word that we use is effective nuclear pull. बढ़ तो रहा है लेकिन रिजल्टेंट या नेट न्यूक्लियर पुल कम है। ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इट बिकम्स इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन अ पोटेशियम एटम। ठीक है जी, समझ आई बात? तो हम पता है पहले एक ट्रेंड पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जीज का, एंड दैट ट्रेंड वुड बी द ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज डाउन द ग्रुप। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट टेबल के किसी भी ग्रुप की बात करूं, चाहे वो ग्रुप 1 हो, चाहे वो ग्रुप 2 हो, चाहे वो ग्रुप आपका क्या कहते हैं 3, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, सबका एक ही ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप। द वैल्यूज फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज डिक्रीजेस। उसका रीजन क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, देखो हियर आई एम कंपेयरिंग द एटम्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हैज 12 protons, sodium has 11 protons, both have equal number of shells, right? Here both have equal number of shells, and more importantly the atomic radius of magnesium atom is smaller because across the period we have already established the size of atomic size decreases. ठीक है, रीजन क्योंकि इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। क्या सोडियम एटम और मैग्नीशियम एटम में शील्डिंग का डिफरेंस है? इफ आई आस्क यू कि क्या सोडियम और मैग्नीशियम की शील्डिंग डिफरेंट है? अरे मैं सिंपल सी आपसे ये बात कर रहा हूं कि अभी हमने एक ही ग्रुप के दो एटम्स को कंपेयर किया, सोडियम एंड पोटेशियम। अभी हम एक ही पीरियड के दो एटम्स को कंपेयर कर लेते हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2। मतलब सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, बैलेंस में 1। मैग्नीशियम इज 282, right? If you see the sizes of sodium atom and a magnesium atom, size of magnesium atom is a bit smaller as compared to the size of magnesium atom. Why? Because both have equal number of shells. जब दोनों के पास नंबर ऑफ शेल्स इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का शील्डिंग इफेक्ट तो सेम है। मतलब सोडियम एटम के पास 3 शेल्स हैं, मैग्नीशियम एटम के पास भी 3 प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स हैं। इट मींस दोनों की जो शील्डिंग है वो तो इक्वल है। अब शील्डिंग अगर दोनों की सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, तो द ओनली फैक्टर इन प्ले इज योर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सोडियम हैज 11 protons, magnesium has
12 protons. The valence shell of sodium has 1 electron. Same goes for magnesium, but the valence shell for magnesium atom has 2 electrons. लेकिन शील्डिंग हम देखते हैं इनर शेल से. वैलेंस शेल से पीछे कितने शेल्स हैं सोडियम में? 2. वैलेंस शेल से पीछे कितने शेल्स हैं मैग्नीशियम में? 2. शील्डिंग इज एक्चुअली टेकन इन अकाउंट बाय द इनर शेल्स. यस, शील्डिंग इफेक्ट सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल से, जो कि वैलेंस शेल से पीछे पीछे वाले शेल्स होते हैं. तो both atoms have same शील्डिंग इफेक्ट. तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से तो मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता, बट न्यूक्लियर attraction in magnesium is greater. Why? Because its number of protons are greater. तो आपको क्या लगता है किसका इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, मैग्नीशियम का या सोडियम का? सोडियम का. Why? न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसकी ज्यादा है? मैग्नीशियम की ज्यादा है. न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है ना. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर, नॉट सोडियम. अबिहा, अहमद, बात समझ आई बेटा? अहमद हुसैन एंड अबिहा. ओ ओके ओके, यू आर ओके, कोई बात नहीं. गुड न्यूज. अच्छा, अब आपको जो है ना ट्रेंड बताना है ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज डाउन द ग्रुप. ठीक है. सो डाउन द ग्रुप, व्हाट डू यू थिंक? इफ यू सी ग्रुप 1 or any of the group of the periodic table, the first ionization energies down the group always decreases. The reason being because down the group, as you move down the group, shielding effect increases as number of shells increases, but nuclear attraction also increases. और nuclear attraction भी छोटे मोटे अमाउंट से नहीं बढ़ रहा. लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, सोडियम के पास 11 है, पोटेशियम के पास 19 है, but still shielding effect wins. The effect of shielding is still more significant as compared to shielding, because as you go down the group, shielding to increase हो रहा है, साथ में distance of the outer shell electron from the nucleus भी increase हो रहा है, right? और न्यूक्लियर अट्रैक्शन आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाएगा, शील्डिंग और नंबर ऑफ शेल्स आयनाइजेशन एनर्जी को कम करेंगे. तो कोई तो जीतेगा ना इनमें से. कौन एक दूसरे को एग्जैक्टली काउंटर नहीं कर रहे. Shielding or distance of valence electron from the nucleus, they win, and nuclear attraction due to increase in number of protons, they lose. So the net effect is first ionization energies decreases down the group. So how do you write this answer in your paper? They asked you to explain why the values of first ionization energy decreases down the group. You have to make a proper answer for this question, and the proper answer is, although the nuclear charge increases, you cannot deny about nuclear charge. Sometimes they asked you this question for 4 marks, sometimes they asked you for 3 marks. When they asked you for 3 marks, you are just supposed to write about the shielding effect and number of shells and the distance, and that's it. However, when they asked you about for 4 marks, then you have to discuss the nuclear charge as well. Although nuclear charge is increasing, which must increase the ionization energy, but ultimately the effect of nuclear pull is not dominant. The shielding effect wins, or it is more dominant, that it decreases the value of first ionization energies down the group. So how do you write this answer? It doesn't matter if it comes for 4 marks or 3 marks. हम जो याद करवाएंगे आपको वो फॉर 4 मार्क्स याद करवाएंगे. आपने 3 मार्क्स में भी यही लिख के आना है, अलग अलग याद नहीं करेंगे. Although nuclear charge increases due to increase in number of protons, and we have to make sure we have to use as few words as possible, but we have to include all the concept, क्योंकि लाइंस इतनी नहीं होती हैं हमारे पास. और सेकेंड थिंग कि मैं ये थ्योरेटिकल आंसर्स आपको पॉइंट फॉर्म में लिख पाऊंगा, आपने पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखने हैं पेपर में,
आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखने होते हैं, लेकिन मैं पॉइंट फॉर्म में इसलिए लिख पाऊंगा सो दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर इट वेरी इजली। आपको याद रहेगा कि अच्छा 3 पॉइंट लिखवाए थे सर ने, 3 पॉइंट तो मुझे पूरे करने हैं, लेकिन आप इनको लिखोगे कैसे एग्जाम में? जस्ट फुल स्टॉप डाल डाल के लिख देना आगे इन्हीं पॉइंट्स को, वो पैराग्राफ बन जाएगा। So although nuclear charge increases due to increase in number of protons, but shielding effect and atomic radii increases due to increase in number of shells. So effective nuclear pull decreases down the road. So that's why first ionization energy decreases down the road. अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं ना एक्सप्लेन व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द रोड, तो आप ये 3 फैक्टर, ये 3 बातें करोगे। लेकिन अगर वो कहता है explain the trend of first ionization energy down the group, अगर वो ये बताता ही नहीं है आपको कि डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो आपका 1 मार्क और बढ़ जाएगा। मतलब now first you have to tell that the values of first ionization energies decreases down the group, then you have to write all these 3 statements. Got it? अभी क्योंकि हेडिंग में ही लिख दिया था कि डिक्रीज हो रही है, या क्वेश्चन में लिख देगा वो डिक्रीज हो रही है, तो दोबारा ये बात लिखने का कि नहीं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, उसका एक अलग से मार्क नहीं देगा वो। गॉट माय पॉइंट? yes, you can say shielding effect is more significant, or you can also use the word effective nuclear pull, क्योंकि effective nuclear pull लिख दिया मतलब resultant force की बात कर रहे हो। resultant force जो है वो डिक्रीज हो रही है, शील्डिंग आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है और न्यूक्लियर पुल इनवर्ट फोर्स लगा रहा है। जीत कौन सी फोर्स रही है? शील्डिंग वाली, क्योंकि आउटवर्ड फोर्स ज्यादा लग रही है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि भाई एक साइड पे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, एक साइड पे 5 न्यूटन लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स या इफेक्टिव फोर्स 5 न्यूटन है ना, जब टुवर्ड्स राइट लग रही है, तो शील्डिंग की फोर्स ज्यादा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है। तो यू कैन ऑल्सो राइट a shielding effect is more significant, then again it would earn you the same mark. So effective nuclear pull decreases down the group, as you can add shielding effect is more significant, but again this would be like repeating the statement that you have already written. In other words, so this will again just आपका टाइम कम पड़ेगा, आपकी लाइंस कम पड़ेंगी। अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम यह है कि ये पेपर 2 में क्वेश्चन बहुत बार आया है। आप किसी ईयर में इस पेपर 2 को देखोगे, इसके आंसर में शील्डिंग इफेक्ट इज मोर सिग्निफिकेंट का वर्ड लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस में एमएस में लिखा हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस। अच्छा कभी कभार रिजल्टेंट न्यूक्लियर पुल भी लिखा हुआ है, न्यूक्लियर पुल की जगह न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी लिखा हुआ है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीजों का एक ही मतलब है। आप अपना ये वाला आंसर याद कर लिया ना, जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, जब हम एमएस देखेंगे तो एमएस के हिसाब से जो जो वर्डिंग्स आपको इजीली याद हो जाएंगी, आप वो याद कर लेना, बात खत्म। सही है हुजैफा? गॉट इट? कोई और सवाल है किसी का? नहीं, चलो जा सकते हैं अभी आप लोग पे। हाफिज।